नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जेवर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये देश का पहला हवाई अड्डा भी है जिसे मल्टी मॉडल कार्गो को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है। इससे कार्गो मूवमेंट की टोटल कॉस्ट और टाइम में भी बचत होगी। नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात के रूप में ये एयरपोर्ट होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला नेट जीरो एमिशंस एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। आज के कार्यक्रम के लिए आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती वहां पर की गई है। The main focus and the interest, of course, is to find out what the eventual airport building, this entire airport, is going to look like. And for that, this scale model has been prepared. Keep in mind that this is a 1:3000 scale that has been used for this airport model. Starting with the approach, this is the Yamuna Expressway, which is going to give access. It connects the National Capital Region to the airport building. Here you have the main airport terminal. Keep in mind that this is only phase 1 of the entire project. This is going to be completed in many phases. Phase 1, which is going to be completed in 2024, only one runway, which is the first runway, is going to be open for operation. So you've got the runway over here. Then right next to it, you'll have the second runway, which will also open over the next couple of years. Here you see all the parking bays, the hangars, they are all present here. Also note that the idea is not to just have one airport, but to have an entire aerocity around it. So if this is the airport terminal, here you will see the maintenance bays. Incidentally, this is one of the very few facilities in India where you've got everything integrated. You've got the takeoff and landing facilities, you've got the cargo operation, and also the maintenance and overhaul, all happening within one area itself. This is the entire aerocity that you see, which is going to have various hotels, malls, shops, and a lot of talk about how this is then going to lead to employment generation. That is as far as phase 1 is concerned, where you see 2 runways being operationalized. Subsequently, you are going to see a much larger construction taking place. Remember, this is spread over an area of 1400 hectares. So 4 more runways eventually are going to come up. What is the capacity of this airport like? It is geared to have a traffic, a capacity of as many as 70 million people per year. Keep in mind that that's almost half of the total capacity of annual capacity of airports across the country. So in scale and size, there is no doubt that this is a massive project. Again, here if you see in phase 2, you've got the airport hangars over here. This is the commercial area where eventually hotels etc. are going to come up, and this here, right here in the center, is the main airport building. And in designing the airport also, a lot of cultural elements are being incorporated. और नोएडा हवाई अड्डा परियोजना को लेकर तमाम चर्चा के बीच आपको बता दें, वहां से विस्थापित किसानों को उनकी जमीन के बदले पर्याप्त मुआवजा नहीं दिए जाने की चिंता भी अब उभर कर सामने आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर सवाल करते हुए पूछा कि अब तक किसानों को उनके जमीन के बदले मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। उस रिपोर्ट में कुछ किसानों के टेंट में रहने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह से किसानों को बेघर नहीं कर सकते। हालांकि सरकार का दावा है कि भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। आपने जो उनको मुआवजा मिला वो बढ़ाया, और खुद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आकर के मिले थे लोगों से। पर जो अभी भी कुछ विस्थापित लोग हैं, उनका कहना है कि 2 उनको मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। एक, सबको जो मुआवजा मिलना था नहीं मिला है, और दूसरा, जो नौकरियों का वादा किया गया था वो क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट बना नहीं है तो वो लोग अभी भी बेरोजगार हैं। उनके लिए क्या किया जा रहा है? जैसा कि 611 किसानों को हमने चिन्हित किया था जिनके प्रकरण थे, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला था,
कुछ मकानों के प्रकरण थे, कुछ उनके बोरिंग और पेड़ों के प्रकरण थे। तो 611 किसानों को साथ लेकर प्रशासन को मैंने तहसील में बुलाया और वार्ता की। उसके बाद से तकरीबन हम 450 प्रकरण सॉल्व करा चुके हैं। बाकियों के लिए भी कल रात को भी 11 बजे मेरे पास एक सूची आई है जिसमें किसानों के खातों में पैसा डलवाया गया है। तो मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं कि किसानों से जो वायदे किए गए उन्हें हम अंजाम तक पहुंचा पाएं, और किसी भी किसान को हम अगर कोई चारा जोई है या उसे परेशानी है तो व्यक्तिगत तौर से मैं उनकी समस्याओं के लिए प्रयत्नशील रहता हूं, और अधिकारियों से, प्रशासन से मिलकर मेरा मानना ये है कि हम किसानों ने इतने बड़े एक विकास की योजना को यहाँ अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई है, तो किसानों के प्रति सरकार और प्रशासन का नज़रिया ऐसा हो कि उन्हें इनाम के तौर पर उनकी समस्याओं को वरीयता से इसलिए हल किया जाए ताकि आने वाले समय में औद्योगिक विकास में किसी भी प्रकार की अड़चन सरकारों के सामने ना आए।